सवाल ये उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे और तरह तरह की क्राइम हो, और कई बार तो हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले खुद ही कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल रेप, हर तरह के इलीगल कामों में इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे हो रहा है कि ऐसी व्यवस्था कैसे चल पा रही है? नीरज कुमार जी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, इनके बारे में ये मैं अभी आपको कुछ कॉपीज़ हैं इसकी चिट्ठी की मैं बंटवाता हूँ। 8 जुलाई 2012 को एडमंड्स एलन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि अभिषेक वर्मा के बिजनेस पार्टनर थे। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें कि नीरज कुमार जी के आखिरी पेज पर नीरज कुमार जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लिखा है कि रमनीश's letter dated 13th January 2009 again to CBI officers Ramneesh and Neeraj Kumar sent to me for safekeeping, wherein he requests these CBI officers indirectly to harass and prosecute a witness called Rawat in a case registered by CBI against Verma by them for fraudulently obtaining a second passport to flee India. It is for the first time in my life that and I started in a large Wall Street law firm in 1968 that I have seen or heard of an accused write a letter to an agency that is prosecuting him to harass their own witness who has first-hand knowledge of his deceit, and the agency has chosen to suppress the same along with the information of his money laundering to pay the same witness. यानी कि अभिषेक वर्मा एक चिट्ठी लिखता है नीरज कुमार और रमनीश जो कि उस समय सीबीआई में थे उनको, और उस चिट्ठी की कॉपी अपने बिजनेस पार्टनर को सेफ कीपिंग के लिए भेज देता है, और उसमें लिखता है कि आप हमारे खिलाफ जो एक विटनेस है जो केस सीबीआई इस वर्मा के खिलाफ चला रही है उसको हैरेस करिए। फिर कहते हैं वर्मा's email dated 14 July 2011 copied to me instructing Sig Sauer and Swiss Arms Company whom Verma and Anka Nescu उसकी जो wife हैं represent in India, wherein he admits Neeraj Kumar is his personal and family friend। यानी कि अभिषेक वर्मा जो कि इतने सारे केसेस में आरोपी है, चाहे वो स्कॉर्पियन सबमरीन ले लीजिए, चाहे वो नेवी वॉर रूम लीक केस ले लीजिए, चाहे वो ये वेस्टलैंड ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए, सब में आरोपी है, मतलब कम से कम जेल में है कई साल से। लेकिन उसके पर्सनल फ्रेंड है जिसको इस तरह से वो चिट्ठी लिखकर अपने बिजनेस पार्टनर को सेफ कीपिंग के लिए भेज देता है। वर्मा's letter dated 13th July 2006 again to a CBI officer Ramneesh asking him to release the money seized by Ramneesh from Verma's residence during the Navy war room leak. Unfortunately, the judiciary refused to help Verma out in this case, but it is strange and a familiar pattern that since 1999 to 2011 he is always investigated by Ramneesh and also reveals the immense confidence Verma has in Ramneesh to help him when he is in trouble, but chooses suspicious ways to keep in touch with Ramneesh and Mr. Neeraj Kumar as mentioned. Hence, from the above and my earlier evidence, it is imperative that your office direct an appropriate neutral agency to investigate Verma's own claim about his nexus with certain tainted CBI officers, including Ramneesh and Neeraj Kumar, and maybe others, protecting him in Tihar jail, since the CVC is too scared to do so for some reason. ये सब इतना डिटेल में, और उसने सारी ये चिट्ठियाँ ईमेल वगैरह जो वर्मा ने उसको भेजी थी सब प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सीबीआई को, सबको भेज दी, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इसी तरह से अभी बहुत हाल में हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स, एडमिरल रामदास, जनरल वीके सिंह, मिस्टर देव सायम वगैरह ने एक और चिट्ठी
सरकार को लिखी थी इनके नीरज कुमार के अपॉइंटमेंट के बारे में 4 मार्च 2013, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई इनके बारे में। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ये फैक्ट्स हैं। इन्होंने लिखा, From the records and documents made available to us, we are of the considered opinion that the present Commissioner of Police, Neeraj Kumar, does not fit the bill. There are many serious charges of corruption and criminalization pending against him. Briefly mentioned, these are 2 FIRs. Honorable Delhi High Court, by 2 separate orders dated 26/6/2006, had directed registration of FIRs against Mr. Neeraj Kumar for fabrication of documents during course of investigation of a case and for humiliating, torturing and harassing an innocent citizen while working in CBI as joint director. He managed an illegal stay from the division bench through a latest patent appeal which are not maintainable. This is a blatant sabotage of law, etc. B. Very close links with Abhishek Verma, master scamster and notorious arms and hawala dealer, who has already been charged by the CBI for compromising country's security and integrity in Navy War Room leak case and presently in judicial custody, again on account of his arrest by CBI in another case booked under the Official Secrets Act for illegally obtaining highly sensitive and secret defense documents and selling the same to foreign countries. As Joint Director CBI, Neeraj Kumar had used all his power and authority to protect and shield Abhishek Verma from various stringent legal actions. C. As Director of Prisons, Neeraj Kumar, while was negotiating deals for purchase of arms including assault rifles with Abhishek Verma, who was representing a foreign arms manufacturer and was confined in Tihar jail. In various communications including emails sent from Tihar jail, Abhishek Verma claims Neeraj Kumar is his personal and family friend, etc. etc. इन चिट्ठियों की कुछ कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, इसकी और कॉपीज़ आप लोग करा के बंटवा लीजिएगा। पर ये सब ये दिखाता है कि एक आदमी जिसके खिलाफ इतने सारे सीरियस चार्जेस हैं, जो कि अभिषेक वर्मा, जो कि मतलब इस देश का बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल है, उसके साथ उसके इतने सारे क्लोज लिंक्स हैं, जिसका एविडेंस अभिषेक वर्मा का पार्टनर सरकार को भेज चुका है। कोई इंक्वायरी इस पर नहीं होती, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होती, और उस आदमी को कंटिन्यूड रखा जाता है एज पुलिस कमिश्नर। और ये सब इसीलिए है क्योंकि वो सरकार का वो काम करता है जो सरकार चाहती है। जैसे कि जो पिछली बार जब ये रेप के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुए, तो क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो था तोमर, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारा वहाँ पर गिर गया, और इन्होंने एक हमारे आम आदमी के लड़के को पकड़ लिया तो उसको मर्डर के लिए चार्ज कर दिया। जबकि मतलब वो तो बाद में सारे सेल फोन रिकॉर्ड्स वगैरह से निकला कि वो वहाँ से तो बहुत दूर था, वो तो पुलिस स्टेशन में बैठा था, उससे पहले ही पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर चुके थे। इसी तरह से 8 और लोगों को मर्डर के लिए चार्ज कर दिया। यानी कि मतलब इतनी बेईमानी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चाहती थी कि भाई आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, उनके एक सपोर्टर को या उनके एक वॉलंटियर को मर्डर के लिए चार्ज कर दो कि ये लोग इस तरह से दंगा कर रहे थे। तो इस तरह के ऑफिसर जो होते हैं, जो बहुत ही भ्रष्ट और कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं, सरकार के लिए बड़े कन्वीनियंट होते हैं, इसीलिए उनको चलाया जाता है। आज नीरज कुमार साहब कहते हैं कि भाई हमारे जाने से क्या होगा, उनके जाने से कुछ तो होगा। कम से कम जो बिल्कुल सारे पुलिस, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो बैठा है, जो सारा कंट्रोल कर रहा है, जिसके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस इस तरह से बिहेव कर रही है, उसका कंट्रोल तो कोई थोड़े बेहतर आदमी के पास जा सकता है। दूसरा, ये पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कम से कम 7 साल पहले का, 2006 का, कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी हर राज्य में बननी चाहिए। और उसका उन्होंने पूरा वो दिया है कि कैसे बनेंगी। उसमें एक रिटायर्ड जज होगा जो कि चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से बनाया जाएगा। बाकी लोग और जो मेंबर्स होंगे वो भी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह के लोग उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी नहीं बनाई जाती। शायद दिल्ली में कोई बनाई है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कैसे बनी है, क्या बनी है, कोई उसका प्रचार नहीं किया गया। तो
कोई जना कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करे, पुलिस मारे पीटे, पुलिस टॉर्चर करे, कोई कंप्लेंट, कोई सुनवाई नहीं है। और इसीलिए ये सब व्यवस्था चलती जा रही है। तो इसीलिए अब समय आ गया है, हम लोग तो खैर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिटीजन्स हेल्प कर सकें उतने हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितना सेल्फ हेल्प सिटीजन्स के द्वारा हो सके उतनी होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा ये व्यवस्था तो हम लोगों को बदलनी ही पड़ेगी, और इसीलिए इस व्यवस्था बदलने का पहला 2 कदम हम लोगों को इमीडिएटली चाहिए। एक, पुलिस कमिश्नर को इसको हटाना, और दूसरा कि पुलिस एक स्वतंत्र पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन दिल्ली में होना चाहिए। जी, नीरज कुमार के अभिषेक वर्मा के साथ किस तरह से संबंध स्थापित किए हैं, आप एक बार एलैबोरेट करके बताएं। अभी मैंने जैसे पढ़ के आपको बताया ना कि उसने एडमंड ज़ैलन, जो इनका पार्टनर है अभिषेक वर्मा का, उसने बहुत डिटेल में कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर पुलक चैटर्जी और सारे अफसरों को, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सीबीआई डायरेक्टर, सबको चिट्ठियां लिखी थी और सारे ईमेल्स और सारे दस्तावेज भेजे थे। उसने लिखा है, जैसे मैंने अभी पढ़कर बताया, आप समझा दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि अभिषेक वर्मा ने एक चिट्ठी 13 जनवरी 2009 की डेट की सीबीआई ऑफिसर्स रमनीश और नीरज कुमार को भेजी, और वो उनको डायरेक्टली नहीं भेजी, मेरे पास भेज दी कि सेफ कस्टडी में रख लीजिए आप। और उस चिट्ठी में ये लिखा कि ये लोग एक विटनेस है रावत नाम का, उसको हैरेस करें, जिसके खिलाफ कोई दूसरा केस चल रहा है और जो वर्मा के केस में भी विटनेस है। और वो ये कह रहा है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव सीन और हर्ड ऑफ एन अक्यूज्ड राइट ए लेटर टू एन एजेंसी दैट इज प्रोसिक्यूटिंग हिम टू हैरेस देयर ओन विटनेस who has first hand knowledge of his deceit and the agency has chosen to suppress the same। यानी कि वर्मा ये लिख रहा है सीबीआई को, सीबीआई उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, सीबीआई को ये लिख रहा है, नीरज कुमार उस समय सीबीआई में थे, कि आप इस विटनेस को, जो उसके खिलाफ विटनेस है वर्मा के खिलाफ, उसको हैरेस करिए। फिर वर्मा's letter dated Verma's email dated 14 July 2011 copied to me instructing Sig Sauer and Swiss Arms Company, 2 आर्म्स कंपनियां हैं, whom वर्मा एंड एना नेस्की, उसकी वाइफ जो है वो भी जेल में है, represent in India, wherein he admits नीरज कुमार is his personal and family friend। यानी कि फिर वर्मा's letter dated 13th July 2006 to CBI officer Ramneesh asking him to release the money seized by Ramneesh from Verma's residence etc. इसमें unfortunately the judiciary refused to help, but chooses suspicious ways to keep in touch with Ramneesh and Neeraj Kumar as mentioned in so and so। नहीं तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, आगे आप जो बताने चाहते हैं, क्या सही में सीबीआई बतौर सीबीआई ऑफिसर उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी उस फिटनेस को? यही फैक्ट कि वर्मा बार बार ये बात लिख रहा है। और दूसरी एक और चीज़ जो उसने दूसरी चिट्ठी में लिखी थी कि रमनीश, वो तो खैर रमनीश के बारे में था कि रमनीश ने एक काइंड ऑफ क्लोजर रिपोर्ट ये इसमें नेवी वॉर रूम लीक ने ये स्कॉर्पियन सबमरीन डील में हाई कोर्ट में फाइल करी थी, और उस रिपोर्ट की कॉपी हम लोगों को देने से तो मना कर दिया। हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन फाइल करी थी कि इसमें एक कोर्ट मॉनिटर्ड या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीबीआई को बोला कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें, और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद बोल दिया कि हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रिपोर्ट की कॉपी हमको तो नहीं दी, लेकिन उसको अभिषेक वर्मा को दे दी, और वो कॉपी अभिषेक वर्मा ने अपने पार्टनर एलन को भेज दी। और उस समय इसके रमनीश के सुपरवाइजिंग ऑफिसर वही थे।
But Prashant ji, Arvind ji, what Neeraj is the Kumar. objective of raising these issues now? Are you trying to build up a case? Are you trying to build up a case for the resignation of the Delhi Police Commissioner? Yes. We have a police commissioner who is seen to be hand in gloves with internationally notorious arms dealer and Hawala dealer called Abhishek Verma. And these are the documents. Edmonds Allen is one of those people. He wrote several letters to several Indian authorities. About 2 years back, we had, or 1.5 years back, we had also made an expose of how they were, 1 year back. 1 year back, there were several charges of allegations of bribery in various arms deals, including this helicopter, which has, we had raised this issue about 1 year back, but now a few months back it has been exposed in the media. Whatever he has written so far, Edmund Allen's, everything seems to have come true. So this is a letter that has been written by Edmund Allen to all Indian authorities, that Neeraj Kumar is hand in glove with Abhishek Verma. So can you have a police commissioner of Delhi who is hand in gloves with the internationally notorious arms dealer and Hawala leader? In the month of December, when Damini's rape case came to light, at that time, So many people. Mr. Neeraj Kumar, before the entire media said that Inspector Tomar did not die of heart attack, he was actually murdered by these 8 people. He said before the entire media, which was wrong. Subsequently, the court has said that he died of heart attack. He is not, and they exonerated. How can you have a police commissioner who is trying to frame people and politically, because of political motivations, he's trying to frame people with false charges. And now you have a police commissioner under whom several rapes are taking place across the city. My Exactly, we are trying to say that the city does not have faith in this police commissioner. Now your question has been, everyone saying, would Neeraj Kumar's resignation solve the problem? It will not solve the problem if the government appoints another Neeraj Kumar. But it will solve the problem if the government has the political will to solve the criminal cases in the city. If Neeraj Kumar is removed, if such a tainted person is removed, if such a corrupt person is removed, and we have a good police commissioner, certainly it will solve the But problem. Arvind, what do you have to say about the fact there are allegations that you have politicized this agitation? What is the politicization? You see, if we were not doing anything, if Aam Aadmi Party was not involved, the media got involved on 19th. Where was the media on 18th? Where was the rest of the people on 18th? 18th there was no one. It is only because Aam Aadmi Party workers went to the police station. They raked up this issue because we went to the hospital next day that the entire case came to the light of the country. So yes, we are in politics. Yes, we are doing politics, but we are doing the politics of that 5-year-old girl. We are doing the politics of the people of this country. हम देश के लोगों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि देश की महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत थी, सरकार मुकेश अंबानी को सुरक्षा दे रही है. Arvind, many would say it appears this time that as the opposition to Congress, compared to the BJP, Aam Aadmi Party, a newly formed party, kind of took over on the protest. It appears BJP is also trying to put forth its sort of protest, but Aam Aadmi Party has been successful. Would you? I think BJP just follows us. If we go and do a gherav on Sonia Gandhi's residence, they do it next day. If we do something today, they would do it next day. I think we are teaching the politics, how the politics should be done to the rest of the parties. ये अभी गवर्नमेंट निर्भया फंड को लेकर के अनडिसाइडेड है, इसे क्या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को लेना चाहिए या फिर होम मिनिस्ट्री को? कोई भी मिनिस्ट्री ले, अल्टीमेटली देखिए मेरा ये क्या है, ये फंड किसके पास जाना चाहिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मिनिस्ट्री में जाएगा, किस मिनिस्ट्री में नहीं जाएगा. हमारे हिसाब से कोई भी मिनिस्ट्री करे, इससे देश के लोगों, क्या महिलाएं इस फंड के बाद सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या दिल्ली की महिलाओं के अंदर रेप बंद हो जाएंगे? क्या छोटी बच्चियों के रेप बंद हो जाएंगे इस निर्भया फंड से? मुझे नहीं लगता बंद होने वाले. सरकार जो करना चाहिए वो सरकार करती नहीं है. नीरज कुमार को हटा के, शिंदे को हटा के एक अच्छा गृह मंत्री चाहिए देश को, एक अच्छा पुलिस कमिश्नर, ईमानदार पुलिस कमिश्नर जो एक आम आदमी की भावना को समझे, उसकी तकलीफ को समझे, ऐसा पुलिस कमिश्नर चाहिए. पुलिस कंप्लेंट हमारे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन अच्छे ऑफिसर्स की कोई कमी है क्या? अगर सरकार की नीयत है, पॉलिटिकल विल है, अच्छे ऑफिसर्स की कमी नहीं है. आज सरकार की नीयत खराब है. जब सरकार ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, एसएचओस को अपॉइंट करती है, तो हर थाने की नीलामी होती है. सबको पता है थानों की नीलामी होती है. तो सरकार पैसे खाती है, सरकार की नीयत खराब है. सरकार को ऐसा पुलिस कमिश्नर चाहिए जो उनके ऑपोजिशन पार्टी वालों को फ्रेम करे, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए. ऐसा पुलिस कमिश्नर चाहिए. अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मैं रिजाइन नहीं करने वाला,
तो इसका मतलब उनको सिग्नल मिले हैं ऊपर से, उनके आका, पॉलिटिकल आका उनको शेयर दे रहे हैं कि आप रिजाइन नहीं करेंगे, आप सुरक्षित हैं, आप अपना पैसा कमा के हमें भेजते रहिए। ऑब्वियसली उनको पॉलिटिकल वो मिल रहा है, उसी वजह से वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे नीचे कोई भी, लाल बहादुर शास्त्री ने एक एक्सीडेंट होने की वजह से रेलवे मिनिस्टर से रिजाइन किया था। एक वो दिन था जब राजनीति इतनी साफ होती थी। आज ये दिन है कि महिलाओं का रेप पे रेप हो जाए और वो खड़ा होकर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपनी पुलिस फोर्स को नहीं, तो पुलिस कमिश्नर का काम क्या होता है? रोज सुबह लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के आना, बड़े बंगले में रहना, एयर कंडीशन दफ्तर में बैठना, ये पुलिस कमिश्नर का काम? पुलिस कमिश्नर बता दें कि उनका काम क्या है। अगर वो अपनी पुलिस फोर्स को नहीं संभाल सकते, अगर वो अपने गंदे पुलिस वालों को नहीं, वो कहते हैं कि हमने जांच कर ली और जिसने 2000 रुपए की रिश्वत दी थी वो भी हमें नहीं मिला, ऐसा पुलिस कमिश्नर है? आप उसके चाचा से पूछिए, जिस लड़की, आप उसके पिताजी से, उनको जिस लड़की के पिताजी और चाचा ने आरोप लगाया है, उनकी पुलिस वालों से तो कोई खुंदक नहीं थी, उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया? इसका मतलब कुछ तो है। और पुलिस कमिश्नर 24 घंटे में क्लीन चिट दे देते हैं अपनी फोर्स को। तो इसका मतलब ये है कि ये गुंडागर्दी चलती रहेगी, ये बलात्कार चलते रहेंगे। इफ वी आर सीन to be taking strictest action if anything goes wrong in our party and we are sincere about it, अगर वो दिसंबर के महीने में अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर कहता है इन 8 लड़कों ने उसका वो किया, मर्डर किया, इसका मतलब पुलिस कमिश्नर को ऊपर से संदेश मिल रहा है। अभी तक जो कुछ पुलिस कमिश्नर ने किया उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। आप दिल्ली के अंदर सर्वे करा लीजिए। इट इज अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द पीपल दैट यस आवर गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट। हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बलात्कार के मामले आए हैं जिसमें उसी परिवार के और पड़ोसी इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस ने क्या किया? उसने जाके रिश्वत दी, पुलिस कमिश्नर ने, एसीपी ने थप्पड़ मारा। ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रही है लोगों के अंदर। गांव का बलात्कार होता है और हम अखबार में पढ़ते हैं मंत्रियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अरे बलात्कार उस बच्ची का हुआ, बलात्कार आम आदमी का, और मंत्रियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मंत्रियों का इससे क्या लेना देना? आम आदमी की सिक्योरिटी बढ़ाओ। हम पढ़ते हैं दिल्ली में 5 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुकेश अंबानी तो इतना अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी तो अपने दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका से उसने हायर करी हुई थी। वो अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं रख लेते हैं? हम लोगों से सिक्योर, जो 36 लोग उनके सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, वो 36 लोग तो इस देश की सुरक्षा के लिए होने चाहिए थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाने चाहिए थे। ज्यादा मजे की बात यह है कि यूपीए सरकार ने मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी लगाई, बीजेपी ने भी अपोज नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने भी अपोज नहीं किया, डीएमके, एडीएमके, किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया। क्यों? मुकेश अंबानी कहते हैं सारी पार्टियां मेरी जेब में है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि सारी पार्टियां उनकी जेब में है। तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं। ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि मैं इस सिक्योरिटी के पैसे दूंगा। अरे तो इसका मतलब मुकेश अंबानी सरकार को कहते हैं मेरे को ये जमीन चाहिए, तो सारी सरकार को जमीन अधिग्रहण करके मुकेश अंबानी को देती है। अरविंद जी, जो मयंक गांधी, प्रधानमंत्री और कमानिया, उनके खिलाफ आप लोगों ने जन लोकपाल बिठाया था, उसकी रिपोर्ट की क्या स्थिति है? मयंक गांधी के बारे में उन्होंने जांच कर ली है। उन्होंने उसमें ऑर्डर किया है कि मयंक गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। जहाँ तक प्रशांत का सवाल है, वो लोग उसकी जांच कर रहे हैं। और अंजलि दमानिया का हमने कहा कि वो स्टेट लोकायुक्त करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अभी हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव बनने जा रही है, तो जब स्टेट एग्जीक्यूटिव बनेगी, स्टेट लोकायुक्त बनेंगे, अंजलि दमानिया नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर वो किया जाएगा।